Hello everyone, New Year is about to come. It's just 4 months away. People are going to take resolutions. I'm not. I'm starting it from today because by January 1st, I'm going to stay ahead every one of them. And my resolutions are I have written down them here to limit any kind of distractions, becoming self disciplined, improving my productivity, and feeling energetic. It's basically becoming the best version of myself by the end of this year. For that, I have started doing certain things from last month, and I have started seeing some changes in my body and mind shift. I have started feeling more energetic. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मतलब इस चीज़ को और अच्छे से करूँ. So in this video, I'm going to discuss about the certain things and changes I'm going to inculcate in my life. You can also follow the blueprint to becoming the best version of yourself, and you can mix and match with your daily routine. If you guys are new here, आप सभी को मेरा नमस्कार and hello. My name is Jyoti, and I'm going to share here my journey to become the best version of myself. Before starting this video, please subscribe to this channel. So first of all, I'm going to create a list of goals which I'm going to stick to for the next 4 months, and I'm going to be very honest this time. I'm not going to make a list of 100 things to do in a single day because it's not possible. We all are humans. We can't do things which are robotic. It's not possible for us to do 100 things on a daily basis. So my goal is to be realistic, not feeling overwhelmed, and not being burnout. Well, for that, I'm going to start by making 5 new habits on a daily basis and going to stick them no matter what. And after a certain time, when these goals become the part of my daily habits, I'm going to stack them with another new habits if it feels necessary, of course. इससे क्या होगा कि I'll be realistic, I will easily stick to my goals, I won't feel burnout, and I won't feel overwhelmed. To add 5 goals, जिसमें से एक दो I'm already doing from the last 1 or 2 months, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था. सो दिस इज द लिस्ट एंड दीज आर द 5 goals, जिसमें से पहला जो है वो डेली मूवमेंट, ईटिंग घर का खाना ऑब्वियसली, रीडिंग एवरी डे, राइटिंग अ जर्नल, एंड पांचवा है नॉट गोइंग टू स्लीप अगेन. द लास्ट वन इज अ रियल टास्क. वाई? लेट मी टेल यू. Daily movement matlab, since I'm a banker, so I have a desk job. I have a job 10 to not typical 5 p.m. It's 10 to जब तक काम खत्म नहीं हो जाता. तो most of the time I have to sit on my desk or movement is zero. So daily movement is very important. So you must have seen in my YouTube shorts that I have started going to the gym, and for that I'm uploading some YouTube shorts रिगार्डिंग दैट. तो जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एक दो चीज़ें जो मैं करने लगी वो यही है, डेली मूवमेंट. सेकेंड है ईटिंग घर का खाना. घर का खाना मैं खाती हूँ, जो भी मतलब मेरी हैबिट में चल रहा है. इट्स बेसिकली 80-20, मतलब कि 80% मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे घर का खाना है. 20% जब कभी मन किया तो मैंने बाहर का थोड़ा बहुत कुछ खा लिया, बट रेशनिशिप भी 80-20. मेरा बेसिकली अभी 90-10 चल रहा है. बट फिर भी जो लोग इस चीज़ को देख के इंस्पायर होना चाहते हैं और जो मंचिंग करते हैं, लाइक बाहर का खाते रहते हैं, माइंडलेस ईटिंग और मंचिंग, तो उसको थोड़ा धीरे 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 कम करते हुए 80-20 के रूल्स पे ला सकते हैं कि 80% घर का खाना, 20% बाहर जब मन किया तब. Reading every day, yes, I used to be a good reader. I used to read every day. I have a collection of 50 to 60 books, but after getting married मेरा थोड़ा सा शेड्यूल शिफ्ट हो गया और मैं अपने आप को पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं दे पाती. बट नाउ आई हैव थॉट कि वो जो हैबिट है ना, उसको वापस अपनी लाइफस्टाइल में लाना है. तो मैंने मेरा ये जो गोल है उसमें रीडिंग एवरी डे इज अ मस्ट. थर्ड फोर्थ वन है राइटिंग अ जर्नल. वेल, आई यूज टू राइट अ जर्नल. मैं मतलब अभी भी लिख देती हूँ कभी जो मन करता है कि व्हेन आई फील ओवरवेल्म, करिए क्या हो रहा है क्या हो, तो व्हेन आई राइट समथिंग तो इट्स क्वाइट calming and soothing. It works in my favor. But it's not daily basis. It's just like जब मन किया तब, जब मन नहीं किया तब. बट आई एम गोइंग टू राइट एवरी डे. आई एम गोइंग टू रिफ्लेक्ट माई होल डे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें. तो ये भी मैं डेली बेसिस के तौर पे भी मैं रोज करूँगी. एंड द लास्ट वन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट गोइंग टू स्लीप अगेन. वेल, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टास्क वन, डेली मूवमेंट. एक्चुअली डेली मूवमेंट का क्या है कि मैं शाम को जाती हूँ जिम, तो मुझे आते आते 9:30 बज जाता है. बट मेरा क्या है कि 9:30 बज जाता है, then उसके बाद वी हैव आवर डिनर, तो इट्स ऑलमोस्ट 10:30. बट खाना खाने के तुरंत बाद नहीं सोना है, तो आई टेक अ ब्रेक एटलीस्ट 1.5 आवर. तो 12 बज जाता है सोते सोते. तो वेकिंग अप अर्ली इज नॉट अ पॉसिबल. दैट्स वाई
इस लिस्ट में मैंने सुबह उठना डाला ही नहीं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, रियलिस्टिक ही नहीं है। तो मैं सो जाती हूँ 12 साढ़े 12 के आसपास। एंड आई डोंट पुट अलार्म। वो इसलिए क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था स्टडी में कि योर बॉडी इज योर अलार्म। when you complete your whole sleep cycle, your body automatically wakes up। पर हमारे साथ क्या होता है कि अरे आँख खुली, अच्छा 6:30 बजे है, 6:30 का हमारा अगर स्लीप साइकिल पूरा हो गया, 6:30 बजे हमारी बॉडी, हमारी आँख खुल जाती है, बट हम क्या करते हैं, दोबारा सो जाते हैं। मैं मेरे साथ भी होता है। मेरा अलार्म जो है मेरी काम वाली आंटी है, शी कम्स अराउंड बिटवीन 7:30 to 7:45। मैं सुबह उठ के आई ओपन द डोर, आई ओपन द विंडो, देन उसके बाद आई गो बैक अगेन टू माई रूम एंड स्लीप। और मैं अलार्म लगाती हूँ 8:05 का। तो वो जो आधे घंटे का जो टाइम है, जिसमें आई कुड हैव डन सो मेनी थिंग्स बट आई डोंट, तो अब मुझे वो नहीं करना है। तो जो मेरा रीडिंग वाला था, उस हैबिट को मैं इन दो हैबिट के बीच में स्टैक कर सकती हूँ। हैबिट स्टैकिंग अ थिंग व्हिच आई हैड रेड इन अ बुक कॉल्ड एटॉमिक हैबिट्स, जहाँ पे ये था कि इफ यू आर डूइंग सर्टेन थिंग्स, कोई हैबिट करें, तो उन हैबिट्स के बीच में ही इन हैबिट्स को, अगर आप कोई नई हैबिट, मतलब इफ यू वांट टू इनकलकेट दैट इन योर रूटीन, तो जैसे दो हैबिट्स उनके बीच में आप डालेंगे, तो आपको कुछ ओवरवेलमिंग या बर्डन सा नहीं लगेगा, आपके माइंड पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, ओ माय गॉड आई हैव टू डू दिस। तो हैबिट स्टैकिंग करती हूँ। तो मेरा जो सेकंड वाला पार्ट है वो हैबिट स्टैकिंग में आ जाएगा, कि मैं सुबह उठूंगी, मैं दरवाज़ा खोलूंगी, मैं खिड़की खोलूंगी, बट मैं दोबारा सोने नहीं जाऊंगी। जो मुझे आधे घंटे का टाइम लाइन मिलेगा उसमें मैं, आई हैव माई ग्रीन टी, आई हैव माई बुक एंड आई विल रीड 10 to 12 पेजेस, जितना भी पॉसिबल होगा। तो ये जो मैंने बताया, दिस इज ऑल माई मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट इज समथिंग लाइक कि ओके ठीक है, आई हैव टू डू दिस। You need to have a clear picture. जैसे my mission statement, I have to become the best version of myself, but best version क्या है, मेरे दिमाग में best version का definition क्या है, how can I look mentally, when I look physically, mentally, spiritually, what is the best version in my imagination, मैं उसके हिसाब से काम करूँगी। तो that is my mission statement. Your mission statement, your best version definition could be different, so that should be your mission statement. To achieve that mission statement, I'm going to create a mission board. Mission board is just like the things and habits which I'm going to cultivate to achieve that mission. That is a mission board. Board is different to vision board. I have seen a video of Nina Lips, and उन्होंने explain किया था बहुत अच्छे से the difference between mission board and vision board. Actually it's action board, कि मिशन को अचीव करने के लिए आप क्या क्या एक्शंस लेते हैं। तो मिशन स्टेटमेंट को उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया फर्दर एक्शन बोर्ड। ओके ठीक है, दैट माय मिशन स्टेटमेंट, मुझे ये करना है, उस चीज को करने के, उस चीज को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करना है, दैट इज एक्शन बोर्ड। बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन एक्शन बोर्ड एंड विजन बोर्ड इज, vision board is inspiration and action board is execution. So what are the actions I'm going to take for the next 4 months to achieve my vision? That is my एक्शन बोर्ड। सो मतलब बहुत सारे पेंटर्स थे, आइडियाज वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज माय विजन बोर्ड, एंड पेंटर्स से मिशन बोर्ड भी, एक्शन बोर्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ये देखना है, तो मुझे क्या करना होगा, ये देखना है तो ये क्या करना होगा, एंड different kind of YouTube videos, inspirations and books you can do all by yourself. Okay, so these are the things for now that which I'm going to do for the next 4 months. You can also follow this blueprint to become the best version of yourself, according to your imagination. I'll be sharing my journey with you guys on daily basis through YouTube Shorts, and I'll make a longer video once in a week showcasing my weekly journey on this जो मैंने mission statement create किया है to becoming the best version of myself. Hope you guys like this video and take some inspiration. So if you like this video, give it a thumbs up and don't forget to subscribe my channel. Please subscribe. I'll see you in my next video. Bye.